Hello students, welcome to English Diction by Indu Minhas. Today I will explain you how to do dialogue writing or dialogue completion. So first of all, what is a dialogue? So it is a conversation between two people on any topic. ओके जो दो पर्सन्स के बीच में किसी भी टॉपिक पे बातचीत होती है तो जो वर्ड्स मुंह से निकलते हैं that is dialogue. Okay, so it is a conversation between two people on any topic, and the main purpose of writing dialogue is to make students able to complete any conversation with grammatical correctness and draw a meaningful conversation. Okay, so dialogue writing में students क्या करते हैं, उन्हें इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करना होता है with grammatical correctness, and they make the conversation a meaningful conversation by filling the gaps in between the given dialogues. Okay, now what are the uses of dialogue writing? So what is the purpose of making the student do dialogue writing? What do they learn from it? Okay, first, it enables students to write and speak language करेक्टली एंड फ्लुएंटली. ओके, जब स्टूडेंट्स डायलॉग राइटिंग करते हैं तो वो उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस देते हैं टू स्पीक लैंग्वेज करेक्टली एंड टू राइट लैंग्वेज correctly and fluently, and it also helps in improving the communication skills of the students. Next, how to write, how to do dialogue writing or dialogue completion. फर्स्ट, लुक एट द सिचुएशन. ओके, हमें एक सिचुएशन दी होती है कि दो लोगों पे किस सिचुएशन पे किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत होने जा रही है. एंड रीड ऑल द डायलॉग्स केयरफुली. ओके, तो हमने पर्टिकुलर सिर्फ वही पढ़ के उसी का आंसर नहीं करना है, पहले सारे के सारे डायलॉग्स की एक रीडिंग लेनी है. ओके, read all the dialogues carefully. Then, for filling the gaps in dialogues, take idea from the preceding dialogue. Preceding मतलब that comes before. Okay, preceding dialogue or the dialogue following. तो gaps को fill करने के लिए या तो जो पहले dialogue है उससे आइडिया लो, और जो बाद में dialogue है उससे आइडिया लो कि हमें यहाँ पे क्या fill करना है. Okay, and use simple and natural language as it is a routine conversation. Okay, and the next, fill the gaps meaningfully and accurately. Okay, so as conversation may be formal, for example with the principal, or informal, for example with your friends, so write dialogues accordingly. Okay, जैसे प्रिंसिपल को हम सिर्फ हेलो सर ही बोल सकते हैं, बट फ्रेंड्स को हम अपना इनफॉर्मल वे में जैसे हाय बडीज या हाय फ्रेंड्स तो ये भी बोल सकते हैं. सो राइट डायलॉग्स अकॉर्डिंगली एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ द conversation. Flow, FLOW, maintain the flow of conversation. Then very important, use punctuation marks carefully, क्योंकि punctuation marks का सही यूज करना बहुत ज़रूरी होता है. कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन, कहाँ पे फुल स्टॉप एंड ऑल दैट. ओके, एंड राइट यूज ऑफ टेंसेस. The most important, right use of tenses. Subject verb agreement. Okay, for example अगर I है तो हम am लिखेंगे, या he है तो is लिखेंगे, पर अगर they है तो हम are लिखेंगे. ठीक है ना, he के साथ has होगा तो they के साथ have होगा. सब्जेक्ट और verb का म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है. और सेंटेंस टाइप शुड बी टेकन केयर ऑफ. सेंटेंस का टाइप क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके, या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या और एनी अदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस है. सो दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ. ओके, एंड द गैप फिल्ड बाय स्टूडेंट्स मे बी अ सेंटेंस, अ क्लॉज और अ फ्रेज. जो हमें ब्लैंक दिया होता है उसमें हमें हो सकता है पूरा सेंटेंस फिल करना हो, और एक क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विद कंप्लीट मीनिंग. और अ फ्रेज क्या होता है,
group of words that do not carry complete meaning on their own. तो ये group of words भी हो सकता है या complete sentence भी हो सकता है. Now let us understand it with an example. So here a situation is given. Suraj calls up Kabir to make a plan for the weekend. Complete the dialogue between Suraj and Kabir by filling the gaps. Okay, so let us read all the dialogues. Suraj, gap, blank, this weekend, question mark. ओके मतलब ये कोई क्वेश्चन है. कबीर उसका क्या आंसर करता है? आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान्स. ओके नेक्स्ट सूरज अगेन, हाउ डू यू लाइक द आइडिया, देन ब्लैंक्स. ओके देन कबीर, दैट साउंड्स गुड बट आई डैश. ओके सूरज, I will come to your house this evening and request your parents to allow you to join me to see the zoo. तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया है कि उनका वीकेंड पे प्लान कहाँ जाने का है? जू को विजिट करने का है. ओके कबीर, दैट इज अ गुड आइडिया. सूरज, डैश इन द इवनिंग. कबीर, और ये क्वेश्चन मार्क है, और कबीर उसके आंसर में क्या बोलता है? यस दे विल बी एट होम. Suraj, great, see dash. Okay, then Kabir, I look forward dash dash dash. Okay, so what students have to do? They have to fill all the gaps, all the blanks given in between the dialogues. Okay, so let us begin again. Suraj, dash this weekend, question mark. Okay, तो कबीर क्वेश्चन मार्क मतलब उसने कुछ क्वेश्चन पुट किया है जिसका आंसर कबीर ने दिया है आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान्स. तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया है कबीर के आंसर से कि सूरज का क्या क्वेश्चन होगा. यही क्वेश्चन होगा ना कि इस वीकेंड वो क्या कर रहा है या इस वीकेंड उसका क्या प्लान्स है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस गैप को फिल करेंगे. हमने यहाँ पे क्या फिल किया? What are you doing this weekend? To this Kabir answers, I don't have any special plans. Further Suraj asks, how do you like the idea dash. Okay, तो फिर अगेन एक गैप है. नेक्स्ट कबीर उसको आंसर करता है that sounds good but I dash dash dash. ओके सो हमें इसको आगे बढ़ाना. कबीर ने बोला है कि दैट साउंड्स गुड, कि ये तो बहुत अच्छी बात है. तो इसके ऊपर सूरज ने पूछा क्या था? हाउ डू यू लाइक द आइडिया. ठीक है, मतलब हमने इसी ब्लैंक को कंप्लीट करना है. तो हम क्या बोल सकते फिल करेंगे इसमें? हाउ डू यू लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द जू. ओके टू दिस कबीर आंसर्स दैट साउंड्स गुड बट आई डैश. ठीक है, अगेन यहाँ पे हमने इस डायलॉग को कंप्लीट करना है. तो इसका आइडिया हम इसके नीचे जो सूरज ने बोला है उससे लेंगे. सूरज, आई विल कम टू योर हाउस दिस इवनिंग एंड रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू अलाउ यू टू ज्वाइन मी टू सी द जू. तो यहाँ पे वो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करने की बात कर रहा है. तो कबीर ने भी नेचुरली उसी से रिलेटेड कुछ कहा होगा. तो इसके लिए हम फिर क्या फिल करेंगे? कबीर, दैट साउंड्स गुड बट आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स. ओके इसके बाद सूरज ने बोला है कि आई विल कम टू योर हाउस दिस इवनिंग एंड रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू अलाउ यू टू ज्वाइन मी टू सी द जू. कबीर, दैट इज अ गुड आइडिया. ओके तो सूरज, डैश इन द इवनिंग. अब हम इसका आइडिया कैसे लगाएंगे कि नेक्स्ट उसने क्या बोला होगा. तो इसका आइडिया हम इसके फॉलोइंग डायलॉग से लगाएंगे. तो कबीर ने बोला है यस दे विल बी एट होम. एक्चुअली सूरज ने उसको क्या पूछा होगा फिर? विल दे बी एट होम इन द इवनिंग. तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में भरना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है. तो हेल्पिंग वर्ब बिगनिंग में आ जाएगा. विल दे बी एट होम इन द इवनिंग? यस दे विल बी एट होम. ओके नेक्स्ट सूरज, ग्रेट, सी डैश. तो यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है वो कंक्लूड हो रही है, खत्म हो रही है. तो हमने यहाँ पे ये आइडिया लगाना है कि एंड में सूरज ने उसको क्या बोला होगा. ओके और कबीर ने बोला है आई लुक फॉरवर्ड
डैश डैश डैश। यहाँ पे क्या गैप फिल करेंगे, ग्रेट सी डैश, तो ग्रेट सी यू इन द इवनिंग और सी यू सून। ओके, सो कबीर ने फिर क्या फर्दर रिप्लाई करा होगा, आई लुक फॉरवर्ड डैश। लुक फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू वेट ईगरली। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट योर पेरेंट्स इन द इवनिंग। So in this way the dialogues between Suraj and Kabir gets completed. Okay students, so I hope you will watch and follow the video.